Anji, so we'll start with this program in which we have to, first of all, take input from the user as a string, and we have to find the total number of lowercase vowels present in that string. So because we're not aware what which letter will be satisfying the given condition, we will check each and every letter of the string. So we need to set up a loop. Well, we will do that. We'll start with taking the input from the user. We'll start with this. Enter the string. Input is done. Now we'll set up a loop that will run through the entire string. So I'll write this as y in x. So when we write this, it means that we wish to go through the entire string from the first letter to the end letter. So what exactly happens here is one letter from x will come into y at a time, and that happens for every letter of x. What is x? X is the string that is taken input from the user. So suppose user has entered India as input. So I followed by N, followed by D, followed by I, followed by A, and so on. So whenever we have to go through the entire string for any search or whatever operation we have to do, we must make use of iteration like this. So after you've set up the loop, it clearly means that Y has one of the letters of the string, starting with the first. So we simply check whether Y is one of the lowercase vowels or not. So lowercase vowels are quite obviously A, E, I, O, U in lower format. So we use this membership operator, which simply checks whether whatever there is in Y is a part of this or not. So it returns true or false. So if it is true, we will calculate this. So what exactly we want here is to count the number of times we find this letter to be a lowercase vowel. So after the loop gets over, what we do is we simply print total lower case vowels is C. C. So that's all we have to do. So let me again repeat the logic. We take the input first. Obviously, without input, we cannot start whatever we want to do. We have been asked to take a string from the user, so we take that input from the user. Then we set up a loop. Why loop is required? Because we have many letters present in a string and we're not aware how many. So obviously it has to be more than one. So loop will be required even if it is five, even if it is 10. So it's not about knowing the length, but it is about that knowing every string will have multiple letters. So whenever we have that kind of a setup, we need a loop for this. So we are setting up a loop so that we can treat each and every letter. So मैन्युअली भी अगर आपको बोला जाए ये करने के लिए आपको एक मैं सेंटेंस लिख के दे देता हूँ और बोलता हूँ कि इसमें देख के बताओ कि कितने लोअर केस वोवेल्स है तो आप एक एक लेटर करके ही चेक करोगे. So exactly that can be done using a loop. So loop will take out one letter at a time from the string, and for that particular letter, we check this condition whether it's a part of this or not. In operator हमारा काम थोड़ा सा इजी कर रहा है. हम इकट्ठे पांचों को एक साथ लिख पा रहे हैं. We are able to write all the five conditions together. So it will simply check whether whatever we have in Y is there as a member of these five or not. इनमें से इन पांच में से है कि नहीं. अगर है तो we'll simply count the number. Counted. Counting के लिए हम add one करते हैं. We just add one. And finally we print the total of lowercase vowels जितना मतलब है उसको मैं print किया. अब मैं इसको execute करके दिखाता हूँ. How will do? I'll shift over to the output screen so that you can see it. So this is India is my country. Then बहुत सारे letters type कर दिए. इसमें से सारे है तो सारे अल्फाबेट्स बट सारे लोअर केस वोवेल्स नहीं है. तो वो काउंट करके हमें बताएगा. सी इट हैज सिक्स. एक बार काउंट करके देख लेते हैं. ये आई एक, ये दो, ये तीन, ये चार, ये पांच और ये छह. सिक्स. राइट.
तो खैर आउटपुट तो आना ही था, बिकॉज लॉजिक इज ऑल वी हैव टू बी कंसिडर अबाउट। आप जब एग्जामिनेशन में आप प्रोग्राम लिखेंगे, अब आप आउटपुट तो नहीं देखेंगे, आपको तो सिर्फ लॉजिक अप्लाई करना है। तो दिस इज हाउ वी कैन। तो ये क्वेश्चन का सोल्यूशन ये है। ठीक है, ऐसे कोई भी स्ट्रिंग बेस्ड क्वेश्चन आ सकता है, और अगर मैं कहूंगा कि स्ट्रिंग बेस्ड क्वेश्चन आएगा ही आएगा, और लिस्ट बेस्ड क्वेश्चन भी आएगा फॉर श्योर, ये तो श्योर है। तो कौन सा आता है, दैट इज वन थिंग दैट यू हैव टू टैकल द काइंड ऑफ प्रॉब्लम दैट कम्स। अब लेट मी क्विकली स्विच ओवर टू द अदर क्वेश्चन। देखिए यहाँ पे अगला प्रोग्राम क्या है। राइट अ प्रोग्राम टू इनपुट अ स्ट्रिंग एंड काउंट वर्ड्स इन अ स्ट्रिंग, इन द स्ट्रिंग दैट स्टार्ट्स विथ जी। एक स्ट्रिंग इनपुट करना है, और उसमें वो सारे वर्ड्स काउंट करने हैं जो जी से स्टार्ट होने वाले हैं। तो आप कैसे करेंगे इसको, लेट्स गो बैक टू द प्रोग्राम, और इस चीज को हम करके देख लेते हैं कि इस क्वेश्चन को, है तो ये भी स्ट्रिंग बेस्ड क्वेश्चन, तो इसको कैसे हम करेंगे। तो मैं व्हाट आई डू इज, मैं इसको भी हाइड कर देता हूँ पूरे को, सो दैट बाद में मैं इसको, इस कोड को भी मैं आपसे शेयर कर लूंगा, यू कैन ऑलवेज रेफर टू इट। ठीक है, तो ये हमारा पर्पस हो गया। Write a program to input a string and count words in the string that starts with G. This is the given question. ठीक है, तो पहला काम, first thing first, we will input the string from the user. Input हो गया। अब हम क्या करेंगे, हम again we have to start do something so that we are able to have words। अभी यहाँ पे letters नहीं है, words है। और कभी भी वर्ड से रिलेटेड कोई काम होगा, हमें एक काम जरूर कर लेना है, एक्स डॉट स्प्लिट। अब ये स्प्लिट फंक्शन क्या करता है, स्प्लिट फंक्शन आपके पूरे स्ट्रिंग को वर्ड्स में कन्वर्ट कर लेता है। तो अगर मान लेते हैं आपने यहाँ पे डाला है, सपोज दिस इज अ नाइस प्लेस, ऐसा कुछ कर दिया है, तो वो हर वर्ड को अलग अलग करके एक लिस्ट तैयार करके आपको वर्ड में देगा। So whenever it is a word-based question, you have to do this so that you have all the words separately stored. अब देखिए डिफरेंस दोनों में ये है, एक्स में वर्ड्स तो सारे वही हैं, लेकिन वो इकट्ठे हैं। तो आपको नहीं पता कि कौन से पोजीशन पे एक वर्ड स्टार्ट हो रहा है, कहाँ पे खत्म हो रहा है। लेकिन अगर वो स्प्लिट कर लेंगे आप, तो आपके पास सारे वर्ड्स अलग अलग, एज अलग डिफरेंट मेंबर्स, दे आर अवेलेबल इन योर लिस्ट। तो वाई इज अ लिस्ट दैट कैरीज ऑल द वर्ड्स सेपरेटली स्टोर्ड। तो ऑब्वियसली आप लूप चला के यू कैन गो थ्रू। तो मैं अगला स्टेप वही करने वाला हूँ। आई विल राइट दिस फॉर जेड इन वाई। इससे क्या होगा, वाई इज अ लिस्ट ऑफ वर्ड्स, तो इसका मतलब जेड में एक एक करके वर्ड आता रहेगा। जो वर्ड है, क्या उसका पहला लेटर जी है। पहला लेटर कैसे चेक करें, ऐसे चेक करेंगे कि जेड जीरो जो है वो जी है कि नहीं। अगर है तो हमें आगे बढ़ेंगे। सो दिस इज एग्जैक्टली व्हाट वी हैव टू डू, वी हैव टू काउंट इट। हमें काउंट करने के लिए बोला गया है वो सारे वर्ड्स जो कि जी से स्टार्ट होने वाले। तो हमने यही देखा, पहले तो हमने एक लूप सेटअप किया जिससे कि क्या हुआ, हर एक वर्ड एक एक करके जेड पे आता जाएगा। और एवरी टाइम वी चेक वेदर, अगर हम स्प्लिट नहीं करते तो जेड जीरो, तो पहले वर्ड का पहला लेटर होता, लेकिन दूसरे वर्ड का पहला लेटर हम नहीं ले पाते उससे, बिकॉज वी विल नॉट बी अवेयर कि कहाँ पे दूसरा वर्ड स्टार्ट हो रहा है। उसका लोकेशन हमें हमें नहीं पता होगा। तो स्प्लिट से क्या हुआ कि सारे वर्ड स्प्लिट हो गए, मतलब अलग अलग हो गए, इंडिपेंडेंट हो गए। और जब आप लूप चला रहे हैं तो क्या होगा, हर वर्ड को अलग अलग से जेड में पहुंचाया जाएगा। एंड व्हेन वी राइट दिस जेड जीरो इज इक्वल टू जी, बेसिकली इट मींस दैट वी आर टॉकिंग अबाउट द फर्स्ट लेटर ऑफ ईच ऑफ द वर्ड्स। हर एक वर्ड का पहला लेटर जी है कि, एंड दैट्स द क्वेश्चन कि ये है कि नहीं है। अगर है तो सी इज इक्वल टू सी प्लस वन करेंगे, दैट मींस इट फाइंड्स द टोटल नंबर ऑफ वर्ड्स स्टार्टिंग विद जी। ठीक है, फाइनली जब लूप खत्म हो जाएगा, वी वर्ड्स ऐसा कुछ मैसेज दे देते हैं, वर्ड्स ऐसे करके छोटा सा मैसेज दे देते हैं, सी। सी, सो दिस इज गोइंग टू बी द प्रोग्राम। इसको हम एग्जीक्यूट करके देख लेते हैं कि क्या चलता है। मैं आई शो यू द आउटपुट स्क्रीन ऑल्सो। हाँ जी, तो लेट मी एंटर। क्या लिखें, गुजरात इज इज द वेस्टर्न स्टेट ऑफ इंडिया। ये मैंने जानबूझ के एक ऐसा सेंटेंस लिखा है जिसमें जी है पहला लेटर, है ना।
तो मैं एंटर प्रेस करूंगा, तो एक ही ऐसा वर्ड है जिसमें जी से, कैपिटल जी से स्टार्ट हो रहा है, राइट? तो देखिए वर्ड्स वन आ रहे हैं। तो इसने क्या किया होगा, अगर हम इसको देखना चाहते हैं कि एग्जैक्टली exactly कैसे काम कर रहा होगा, यू कैन ऑलवेज प्रिंट जेड। मैं देखिए, आई गो बैक टू द प्रोग्राम एंड मैं यहाँ पे एक स्टेटमेंट जस्ट चेकिंग के लिए, वैसे जरूरत नहीं है, प्रोग्राम तो चल ही चुका है, मैंने प्रिंट जेड लिखा, तो इससे पता लगेगा कि जेड में क्या हो रहा होगा। देखिए, लेट्स गो बैक एंड इसको फिर से एग्जीक्यूट करते हैं। आई टेक यू बैक टू द आउटपुट स्क्रीन। या सो आई राइट दिस मैसेज अगेन, मैं इसको कॉपी कर लेता हूँ, सेव सम टाइम। ये मैंने फिर से वही शेयर किया, अब देखिए क्या होगा। सी, गुजरात इज द वेस्टर्न स्टेट ऑफ इंडिया। देखिए सारे वर्ड्स अलग अलग लाइन पे आ रहे हैं, इसका मतलब वो सेपरेट उसने कर दिया, जैसे हमें हमें करवाना था, तो इट हैज बीन एबल टू डू इट। तो बस इसी तरीके से वो हर बार एक एक वर्ड निकाल भी रहा है और ये चेक भी कर रहा है कि जी जो है पहला लेटर है कि नहीं है। तो इस वाले स्ट्रिंग में, इस वाले सेंटेंस में एक ऐसा वर्ड है जिसमें पहला लेटर जी है, विच इज द फर्स्ट वर्ड कोइंसिडेंटली, और इसलिए आउटपुट वन आ रहा है इसका। तो ऑफ कोर्स हम इसमें ये वाला लाइन तो शामिल करेंगे नहीं, हमें तो सिर्फ देखना था कि क्या चल रहा है, ये हटा देंगे। दिस इज द रिक्वायर्ड प्रोग्राम फॉर द क्वेश्चन। ठीक है। So if we go back to the program again, this is how it looks like। हमने दो प्रोग्राम, तो इसी तरीके से स्ट्रिंग बेस्ड क्वेश्चंस रहेंगे। ठीक है। अच्छा, अब हम कैटेगरी चेंज करेंगे। कोडिंग के दो प्रोग्राम्स हमने कर दिया है, कोडिंग का जो क्वेश्चन है वो हमने कर लिया, दो कर लिए। ऐसे ही बहुत सारे क्वेश्चंस किए जा सकते हैं, बट वी नीड टू अंडरस्टैंड द टाइप ऑफ क्वेश्चन मोर देन व्हाट क्वेश्चंस वी आर डूइंग। अब देखिए थियोरेटिकल क्वेश्चन अगर आप देखेंगे, तो पहला क्वेश्चन है व्हाट आर मेंबरशिप ऑपरेटर्स। तो मेंबरशिप ऑपरेटर्स कौन से होते हैं, जो इन हमने अभी यूज किया था। तो बेसिकली इट चेक्स वेदर अ गिवन वैल्यू इज प्रेजेंट इन अ स्ट्रिंग और नॉट, क्योंकि अब स्ट्रिंग के बारे में बात हो रही है, तो स्ट्रिंग से रिलेटेड ही आंसर लिखें तो बेहतर है। एक्सप्लेन बोथ द ऑपरेटर्स। ऑपरेटर्स दो होते हैं मेंबरशिप ऑपरेटर्स, एक तो इन और एक नॉट इन। इन बताता है कि है कि नहीं, और नॉट इन बताता है नहीं है कि नहीं। सो इफ यू वांट टू चेक वेदर इट इज नॉट अ पार्ट ऑफ इट, तो नॉट इन भी आप यूज कर सकते हैं। Now coming to the other question, एक और theory question देख लेते हैं, differentiate। These are all sample questions। Obviously ये question उठ के नहीं आएगा, but these are sample questions just to tell you कि किस तरीके के questions हो सकते हैं। If you're not able to judge या so अब so visualize नहीं कर पा रहे हैं कि हमारा क्या क्वेश्चन बनेगा, तो इस तरीके के, अब जैसे फंक्शन बेस्ड आपने पूरी तैयारी की है, नाउ यू टू सी कि इस तरीके इस पे बेस्ड क्वेश्चन कैसे, हम जैसे टाइटल एंड कैपिटलाइज। टाइटल का फंक्शन क्या करता है, इट चेंजेस द फर्स्ट लेटर ऑफ ईच वर्ड इनटू कैपिटल लेटर। कैपिटलाइज क्या करता है, वो सिर्फ पूरे स्ट्रिंग के पहले लेटर को कैपिटलाइज करता है। सो देयर इज अ डिफरेंस। टाइटल हर वर्ड के पहले लेटर को कैपिटलाइज करता है, और कैपिटलाइज पूरे स्ट्रिंग में से सिर्फ एक लेटर को कैपिटलाइज करता है, जो कि पहला लेटर होता है। सो यू कैन राइट दिस एज एन एग्जाम्पल। कोई एग्जाम्पल लेके भी बता सकते हो और ऐसे थियोरेटिकली बता सकते हो। पार्टीशन एंड स्ट्रिप। पार्टीशन एंड स्ट्रिप शायद हम क्लास में आज कर ही रहे थे। पार्टीशन क्या करता है, एक पर्टिकुलर स्ट्रिंग को ढूंढता है, मिल जाए तो उस स्ट्रिंग से पहले वाले पार्ट को अलग कर देता है, अपने आप को अलग करता है, और उसके आगे वाला पार्ट को अलग कर देता है। स्ट्रिप क्या करता है, स्ट्रिप अच्छा, स्ट्रिप तो इज कंप्लीटली अ डिफरेंट स्टोरी। स्ट्रिप क्या करता है, स्पेसेस हटाते हैं, है ना। ये स्प्लिट नहीं है, स्ट्रिप है। स्ट्रिप क्या करेगा, स्पेसेस हटा देगा, लेफ्ट और राइट में अगर एक्स्ट्रा स्पेसेस हैं, स्टार्टिंग में स्पेसेस और एंडिंग वाले स्पेसेस। So you have studied about all of them, but you need to understand how questions will come. So this is one way of the question। अब जैसे अगला क्वेश्चन देखिए क्या लिखा हुआ है, what is concatenation of strings? So obviously again, combination of two strings, two or more strings together to form a single string is what we call as concatenation of strings। तो अगेन एग्जाम्पल के साथ आप इस चीज को एक्सप्लेन कर सकते हो। तो कैटेगरी अगर हम चेंज करें यहाँ पे, एरर बेस्ड क्वेश्चन, दिस इज सी, ये सारे ही कैटेगरी कोई सजेस्टिव नहीं है कि इस तरीके के होंगे, ये पार्ट्स तो रहेंगे ही रहेंगे। ऑल दीज कैटेगरीज विल बी देयर इन योर क्वेश्चन पेपर, वेदर इट इज लिस्ट, वेदर इट इज स्ट्रिंग। तो आपको इंश्योर करना है कि सारे कैरेक्टर्स जो कैटेगरीज हैं, यू हैव टू प्रिपेयर देम।
क्योंकि इसमें कोई ऑप्शन नहीं होगा कि चलो एरर आ सकता है कि नहीं, एरर जरूर आएगा। थ्योरेटिकल क्वेश्चन जरूर रहेगा, कोडिंग के क्वेश्चंस जरूर रहेंगे, दीज आर ऑल श्योर शॉर्ट क्वेश्चंस। बट अब ऑब्वियसली एरर बेस्ड का ये क्वेश्चन ऑब्वियसली नहीं आएगा, कोई और होगा क्वेश्चन, और कॉम्बिनेशन होगा, कोई भी गलत चीज। अब जैसे देख लेते हैं, लेट्स सी हाउ डू वी करेक्ट दिस। क्वेश्चन है रिराइट द करेक्ट सिंटैक्स एरर्स, करेक्टेड होगा ये सिंटैक्स इन द फॉलोइंग पाइथन कोड। तो एक स्ट्रिंग है कंप्यूटर साइंस, तो ये सिंटैक्टिकली इस लाइन में आपको देखना है कि ये सब ठीक है कि नहीं। आपको नीचे देखने की ही जरूरत नहीं, यू डोंट हैव टू केयर अबाउट द आउटपुट, यू डोंट हैव टू केयर अबाउट एनी अदर थिंग अदर देन द लाइन यू आर देयर। एरर का तो ये तरीका होता है, आप पहली लाइन को चेक करिए क्या ये सिंटैक्टिकली सब ठीक ठाक है। तो अगर ठीक है तो आगे बढ़िए, अदरवाइज आगे मत बढ़िए, आगे सही नहीं रहेगा। तो आई इन रेंज जीरो लेन ऑफ एस कॉमा टू। अब देखिए यहाँ पे कोई अगर ऐसा लिख दे, लेन ऑफ टी लिख दे यहाँ पे, तो ये एरर हो जाएगा ना, टी तो कुछ है ही नहीं। तो इमीडिएटली यू विल स्टॉप एंड यू करेक्ट इट कि ये टी नहीं, ये एस होगा। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है टू अंडरस्टैंड कि इसमें क्या एरर्स हैं वो ढूंढना है। अब एस आई डॉट इज लोअर क्या करेगा, चेक करेगा कि एस आई जो है, एस आई देखिए यहाँ पे लूप अगर आप स्टार्ट करें तो जीरो से स्टार्ट हो रहा है क्लियरली। तो एस जीरो डॉट इज लोअर से क्या होगा, इट विल चेक वेदर एस जीरो इज लोअर है कि नहीं, मतलब लोअर है कि नहीं, लोअर केस में है कि नहीं। अगर है तो क्या करेगा, एस आई डॉट अपर प्रिंट करेगा। दैट्स अ वेरी सिंपल थिंग, कैपिटल लेटर प्रिंट कर देना चाहिए। लेकिन इसमें एक एरर है, यहाँ पे एक ब्रैकेट मिसिंग है। देखिए यहाँ पे दो ब्रैकेट्स ओपन हुए हैं, एक ही ब्रैकेट बंद हुआ है। तो दिस इज अ सिंटैक्स एरर, यही आपको ठीक करना है। यू हैव टू बी क्लियर ऑन दिस, यहाँ पे ही गलती होगी। कभी आपको दिखेगा कि ये कॉलन मिसिंग है, तो वो एरर है, सिंटैक्स एरर है। कहीं आपको दिखेगा कि इसका आई कैपिटल हो गया है, तो आपको पकड़ना है उसको। तो यू हैव टू बी वेरी वेरी केयरफुल व्हाइल यू गोइंग थ्रू द लाइन। आपको लाइन से वही पकड़ना है जिसमें गलती है। तो आपको एक साथ पूरे प्रोग्राम को, अगर आप 50 लाइन का भी प्रोग्राम देख रहे हैं तो आपको 50 लाइन एक साथ नहीं देखना है, आपको लाइन एक ही देखनी है। एंड यू हैव टू मेक श्योर कि वो उस लाइन में कोई गलती नहीं है। ठीक है, तो ये मेरे ख्याल से इसमें मुझे और कोई एरर नजर नहीं आ रहा है। तो लुक्स लाइक दिस इज द ओनली एरर वी हैड इन दिस। तो कितने एरर्स है, यूजुअली 2 मार्क के क्वेश्चन में 4 एरर्स होते हैं। बट डिपेंड्स, वो हो भी सकता है, ऐसा भी हो सकता है कि आपको बोला जाए कि क्या एरर है, ये बताने के लिए बोला जाए, एक्सप्लेन करने के लिए बोला जाए, और शायद दो दो ही एरर्स दे 2 नंबर के लिए, जिसमें आधा नंबर करेक्शन के लिए है और आधा नंबर बताने के लिए कि क्या एरर था। तो ये दिस इज क्वाइट पॉसिबल। एनी क्वेश्चंस एनीवन? अभी सब चुपचाप, बिल्कुल सुनाई दे रहा है मेरी आवाज? ऐसा तो नहीं मैं हवा में बात कर रहा हूँ? नहीं सर, आपकी वॉइस आ रही है। श्रद्धा जैन, आयुषी, आप लोगों को कुछ रिस्पॉन्स नहीं आ रहा है? ना तो आपका कैमरा ऑन है। यस सर, आपकी आवाज आ रही है। आ रही है तो कैमरा का ऑन क्यों नहीं कर रहे हो? कुछ ऐसा गाइडलाइंस आया है तुम्हारे पास गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का कि कैमरा ऑन नहीं करना है? सर वो वीडियो काम नहीं। एक बात बताओ, ऑनलाइन क्लास में वीडियो ऑन नहीं है तो बाकी क्या रहा, वॉइस? अब अगली बार तुम्हारा वॉइस भी बंद हो जाएगा, तुम कहोगे कि वॉइस बंद हो गया, वीडियो बंद हो गया, तो बचा क्या ऑनलाइन में? चलिए एनीवेज, लेट्स नॉट वेस्ट टाइम ऑन दिस। सर एक इसी डाउट तरह। था। जी। सर वैल्यू एरर कैसे आइडेंटिफाई होगा कि वैल्यू एरर है? ऐसे इस तरीके के क्वेश्चंस नहीं होते, कोई स्पेसिफिक टाइप के एरर कौन से है इस तरीके से। वैल्यू एरर जनरली हम देखते हैं कि जब आप वैल्यू वो कैलकुलेट नहीं कर पाता, या अब सर्च कर रहा है, सर्च नहीं कर पा रहा है, तो वैल्यू एरर है। तो एरर के नाम से कोई एरर आपको ढूंढने की जरूरत नहीं है, आपको सिर्फ पता होना चाहिए कि इसमें एरर है। राइट? इट्स वेरी डिफिकल्ट ओके। टू नो द नेम्स ऑफ ऑल टाइप्स ऑफ एरर्स। हर एरर का एक नाम होता है। तो आप ये हम्म। समझ लीजिए कि एरर्स को आपको 3 कैटेगरीज में डिवाइड करना आना चाहिए। एक है सिंटैक्स एरर, जो कि चलेगा ही नहीं। एक है रन टाइम एरर एरर, जो चलते चलते बीच में बंद हो जाएगा। और एक लॉजिकल एरर, जिसमें एरर आएगा ही नहीं, उसमें आउटपुट भी आ जाएगा लेकिन गलत आउटपुट आएगा। So this is how you have to prepare yourself. Practically, it is not possible for you to remember the names of all the kind of errors that you come across.
तो कभी भी ऐसे सीबीएसई में भी क्वेश्चन 12th में नहीं आता तो 11th का तो सवाल ही नहीं है। 12th में भी एरर के क्वेश्चंस जो होते हैं उसमें आपको सिर्फ ये पता होना चाहिए कि इसमें सिंटैक्स एरर है कि नहीं है तो उसको करेक्ट करना आना चाहिए। यू डोंट नीड टू रिमेम्बर द एरर्स बाय द नेम, नॉट रिक्वायर्ड एज सच। ऑफ कोर्स अगर आपको पता है तो बहुत अच्छी बात है ना, बट इट इज नॉट अ रिक्वायरमेंट एज फार एज एग्जामिनेशन इज कंसर्न। कभी भी आपको नेम ऑफ द एरर पूछा नहीं जाएगा कि ये बताओ इस वाले एरर का नाम क्या है। ठीक है। ऑब्वियसली एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन तो हमेशा ही बेटर होता है, लेकिन हमें एक बाउंड्री तो खींचनी पड़ेगी कि दिस इज द बाउंड्री, दिस इतना एटलीस्ट आना चाहिए, और मैथ्स का तो कुछ लिमिट नहीं है ना उसका सच। चलिए अगला क्वेश्चन ओके। जो अच्छा अगले क्वेश्चन में एक कुछ आ गया है। दिस इज समथिंग विच इज नॉट अ पार्ट ऑफ द सिलेबस, ऑफ कोर्स ये आप हमने कभी डिस्कस भी नहीं किया, बट इट्स वेरी सिंपल थिंग। लेट मी क्विकली टेल यू कि एनुमरेट एक ऐसा फंक्शन है जो क्या करता है कि एक एक करके इंडेक्स नंबर और उसकी वैल्यू दोनों चीजें निकाल लेता है। फॉर एग्जाम्पल टेक्स्ट में बनाना है तो एनुमरेट बनाना जो है वो क्या होगा, सबसे पहले जीरो और बी रिटर्न करेगा, अगली बार वन और ए करेगा, फिर टू और एन करेगा, एक एक लेटर करके, जैसे हमेशा लूप जब भी चलाते हो तो एक एक लेटर करके आता है। अब यहाँ पे एन्यूमरेट से क्या होता है कि लेटर के साथ आपका उसका इंडेक्स नंबर भी आएगा, विच मीन्स आईडीएक्स में इंडेक्स नंबर चला जाएगा और सीएच में वो जो लेटर है जिस इंडेक्स नंबर में जो डेटा है वो आ जाएगा। तो यहाँ पे क्लियरली सबसे पहले जीरो और बी आएगा, which obviously not does not satisfy the condition, क्योंकि सी एच में तो बी आया है। अगला जो है ए आएगा, है ना, तो सेटिस्फाई हो रहा है, तो एक मैसेज प्रिंट होगा ए एट और उसका आईडीएक्स, आईडीएक्स मतलब इंडेक्स नंबर, दैट मीन्स वन प्रिंट होगा इसमें, थ्री प्रिंट होगा और फाइव प्रिंट होगा, क्योंकि इन तीनों केसेस में ही वो वहां पे, तो यहाँ पे एरर, एरर तो कुछ नहीं है यहाँ पे, नहीं इसमें एरर नहीं है, देयर इज नो एरर इन दिस, बट एन्यूमरेट का पर्पस यहाँ पे थोड़ा सा बहुत क्लियर क्लियर हो जाता है। दिस इज नॉट हैविंग, क्योंकि यहाँ Sir, पे in print there are हाँ हाँ two हाँ हाँ parentheses. हाँ ब्रैकेट दिख गया मेरे को, दो ब्रैकेट्स है इसमें, तो यू हैव टू माइन्यूटली चेक। तो उसमें एरर ये वाले नजर मेरे को ही नजर आएगा, डबल ब्रैकेट्स है, जबकि होना सिंगल ब्रैकेट चाहिए। तो खैर ये एरर के बेस्ड क्वेश्चंस होंगे, तो क्वेश्चन में आपको हर लाइन को एक ये फॉर्मूला नहीं है लेकिन एक तरीका है जिससे कि कंफर्टेबली शायद आप एरर को फाइंड कर सकते हैं। अल्टीमेटली एरर पता होना चाहिए कि एरर है कि नहीं है, वो नहीं पता तो आप कभी भी क्रैक नहीं कर पाएंगे। बट द पॉइंट इज दैट यू हैव टू रेफर टू वन लाइन। यूजुअली प्रोग्राम के साइज को देख के ही बच्चे घबरा जाते हैं, तो एरर का क्वेश्चन गलत हो जाता है। उसमें आपको ध्यान रखना है कि आपको एक एक लाइन करके, बिल्कुल उसी तरह जैसे आपका टीचर आपके आंसर शीट को चेक करता है, एक एक लाइन को चेक करते हैं एग्जामिनर हमेशा, राइट, बिल्कुल उसी तरह से आपको चेक करना है कि कौन सी लाइन में क्या है, और माइन्यूटली नहीं करेंगे तो आपसे मिस हो जाएगा, जैसे कि अभी हुआ कि ब्रैकेट ये बिल्कुल ही दिख नहीं रहा है सच, तो यू हैव टू बी अ लिटिल पेशेंट। तो बस ये एरर का क्वेश्चन हो गया। एरर के क्वेश्चन में यूजुअली सिंटैक्स एरर बेस्ड क्वेश्चन होता है, लेकिन हो सकता है कि अगर आपको पर्पस बता दिया जाए तो साथ में वो लॉजिकल एरर भी आपसे पूछ सकता है कि भाई इसमें मैंने आपको पर्पस बता दिया है तो इस पर बताइए लॉजिकली क्या गलत है। लॉजिकली क्या होगा, आपका आउटपुट नहीं आ रहा होगा उस प्रोग्राम में जो कोड लिखा हुआ है, राइट। तो एरर के यही दो वैरायटीज है, यूजुअली रन टाइम एरर नहीं आता है। तो एनीवेज वो आपको दिख ही जाएगा, जब आप लॉजिकली निकाल सकते हो तो रन टाइम भी निकाल सकते हो, उसमें आएगा कि नहीं। of course this category is very important and this has been a part of your problems because right from the time we started doing Python programs, we are aware that output based question will be there. So if you have a clear understanding of whatever you've learned, you should be comfortable with output। और आउटपुट पे भी सिंगल लाइन का ही चक्कर है कि हर लाइन को आप प्रोसेस कर पा रहे हो कि नहीं। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे फर्स्ट लाइन में एक स्ट्रिंग असाइन हुआ है, सिंटैक्टिकल आपको वरी इस पे है नहीं क्योंकि आउटपुट का क्वेश्चन है, तो एरर तो डेफिनेटली नहीं होगा इसमें।
तो आप सिर्फ ये देख लीजिए कि क्या हो रहा है, सही हो रहा है कि नहीं, ये आपका टेंशन नहीं है क्योंकि सही तो हो गई, लेकिन क्या हो रहा है ये आप नोट कर लीजिए। और ऐसे क्वेश्चन में, स्ट्रिंग या लिस्ट के क्वेश्चन में, हमेशा यू शुड बी मोर कंसर्न अबाउट राइटिंग दिस ऑन पेपर सो दैट यू कैन नो कि कौन सा लेटर कौन से पोजीशन पे है, एंड अकॉर्डिंगली यू कैन स्टार्ट। अब इस क्वेश्चन में देखिए कंप्यूटर साइंस लिखा हुआ है, साइंस पूरा नहीं है, बट लेटर को एज इट इज लिखिएगा। जैसे कि यहाँ पे कैपिटल टी बीच में आ गया, तो बिल्कुल कोई स्कोप नहीं है कि आप कुछ अज्यूम करें, सब कुछ गिवन है यहाँ पे, और उसी के हिसाब से आपको आउटपुट जनरेट करना। और इसको कॉपी करके पाइथन में पेस्ट करके एग्जीक्यूट करके देखने का कोई फायदा नहीं है, क्योंकि कंप्यूटर तो आंसर दे ही देगा सही। यू शुड बी डूइंग इट ऑन पेपर ऑलवेज। ना तो एरर का क्वेश्चन, ना ही आउटपुट का क्वेश्चन, कोई भी आपको कंप्यूटर पे बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। इसलिए क्योंकि कंप्यूटर एरर वाले में भी बता ही देगा आपको कि क्या एरर है। इट इज यू हु हैज टू डिसाइड कि एरर है कि नहीं है, और तभी काम बनेगा। एनीवेज, ये लूप वन से स्टार्ट हो रहा है, लेन ऑफ एस। कैन यू जस्ट टेल मी क्विकली एस कितना है, कितने लेटर्स है इसमें, यहाँ पे नंबर देखिए। सर 11। 11, हाँ, 5 और 6 11, तो 11 लिखने का मतलब यह है कि 10 तक चलेगा, तो इसका मतलब 1 से 10 तक चलेगा। और क्लियरली ये 1 से शुरू हो रहा है, 3 का इंक्रीमेंट है, तो 1 4 7 10 ये चलेगा। ठीक है। तो S1 डॉट इज लोअर क्या कर रहा है, इस लोअर चेक करेगा कि लोअर है कि नहीं है। वन में देखिए स्मॉल ओ है, तो लोअर तो है, तो वो अपर बन जाएगा और रेस्ट में ऐड हो जाएगा। प्लस इक्वल टू का क्या मतलब है, रेस्ट में इनिशियली हमने स्पेस रखा हुआ है, खाली है, वो एम्प्टी है, तो उसमें ऐड हो जाएगा, ऐड होगा कंकैटिनेट हो जाएगा। तो उसमें इसका मतलब क्या है कि कैपिटल ओ चला गया। अगला जो है आई में 4 बनेगा, 1 के बाद +3 होके 4 बनेगा। 4 में क्या स्टोर्ड है, मेरे ख्याल से यू स्टोर्ड है, और वो लोअर है। लोअर है तो इसका मतलब कैपिटल हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे कंडीशन ही लगा हुआ है कि अगर लोअर है तो अपर बना दो, अदरवाइज लोअर बना दो। तो अभी तो ये कंडीशन ट्रू ही है, तो इसलिए अपर बन गया, तो यू भी कैपिटल हो गया। अगला है 7 एंड सो ऑन। इस तरीके से हर लेटर को आप चेक करो कि लोअर है कि नहीं। लोअर है तो बहुत अच्छी बात है, अगर नहीं है तो वो लोअर बन जाएगा। लोअर है तो अपर बना दो, और लोअर नहीं है तो लोअर बना दो, मतलब बेसिकली ये है इसका। और आखिर में, और ये सारी चीजें जो है ऐड होती जा रही है, कॉन्कैटिनेट होती जा रही है रेस्ट वाले वेरिएबल में, एंड फाइनली वी प्रिंट द वैल्यू। सो दिस इज हाउ इट वर्क्स। ठीक है, तो आउटपुट का क्वेश्चन इस तरह से सॉल्व करेंगे। ये भी एक बहुत ही शॉर्ट टाइप का क्वेश्चन है, स्टेटमेंट। अब देखिए क्या क्वेश्चन है। राइट अ वैलिड पाइथन स्टेटमेंट टू असाइन द स्ट्रिंग हेलो वर्ल्ड टू अ वेरिएबल नेम। तो इसका सोल्यूशन मैं इधर अगर लिखूं तो सिंपल एक लाइन में ये हो जाएगा, हेलो वर्ल्ड। ये दिस इज हाउ इट इज सपोज टू बी रिटन। ठीक है, मैं हाईलाइट कर लेता हूँ सो दैट यू कैन सी दैट वेरी क्लियरली। तो एक स्टेटमेंट जो ये काम कर दे, यू डोंट हैव टू राइट एन एंटायर प्रोग्राम फॉर दिस, इनपुट की कोई जरूरत नहीं है, वो बता रहा है कि असाइन करने वाला स्टेटमेंट है। हो सकता है कि इसी क्वेश्चन को ऐसे बोला जाए कि प्रिंट कर दो, तो प्रिंट करते तो ऐसे कर देते। well, it could be anything that can be done using, कोई भी स्टेटमेंट बोल सकता है। वो कह सकता है कि, अब अगर वो कहता है कि रिप्लेस द वर्ड कुछ करके ऐसा लिखते हैं, तो जैसे हमारे पास स्टेटमेंट एक फंक्शन है ना रिप्लेस, कहता है कि हेलो हटा के बाय बाय लिख दो, तो आप क्या लिखोगे, msg.replace, रिप्लेस, क्या ढूंढना है मुझे, हेलो, हेलो को रिप्लेस करके बाय बाय लिखना है। तो दिस हाउ यू राइट। तो अगर इसको एग्जीक्यूट करोगे तो आपको एक वेरिएबल में असाइन करना पड़ेगा। तो अगर आप अब सी को प्रिंट करोगे तो क्या बन जाएगा, ये बाय बाय वर्ड बन जाएगा, हेलो वर्ड की जगह। सो इट इज जस्ट गोइंग टू सर्च हेलो, इफ इट फाइंड, इट विल रिमूव इट एंड ऐड दिस बाय बाय इन प्लेस ऑफ इट। और ये जो चेंजेस है ऑफ कोर्स एमएसजी में नहीं हो सकता। व्हाई? बिकॉज स्ट्रिंग इज इम्यूटेबल, यू कैन नॉट मेक चेंजेस विद इन स्ट्रिंग। ठीक है, तो वो तो हो ही नहीं सकता, इसीलिए इस फंक्शन में ऐसे बनाया गया है कि उसको यूज कर ले, मतलब एज अ सोर्स यूज कर ले, ताकि सर्च कहाँ करे ये तो बताना ही पड़ेगा ना सर। हेलो सर्च कहाँ करेगा, वो एमएसजी में करेगा।
इसलिए एमएसजी डॉट रिप्लेस लिखा है, बट एमएसजी विल नॉट गेट अफेक्टेड बाय दिस। वो रिटर्न कर देगा, जो रिजल्ट है वो सी में हम स्टोर कर रहे हैं, तो सी में आ गए। ठीक है, सो दिस इज हाउ थिंग्स आर, या these आर the variety of questions that we have to make sure that we prepare so that we are comfortably placed in the examination। ये इसीलिए इस पर्टिकुलर स्ट्रिंग्स वाले, जो मैं इसको अभी शेयर भी कर देता हूँ ग्रुप में, बट प्लीज मेक श्योर कि आप इस तरीके के और क्वेश्चंस ढूंढे, चाहे वो आप वहां पे बुकलेट में चेक करें, वहां पे क्वेश्चंस मिल जाएंगे आपको। आपको क्वेश्चन जैसे वो लास्ट ईयर का क्वेश्चन पेपर भी होगा उसमें, उसमें भी आप सर्च कर सकते हो, राइट। सो ये तो श्योर शॉर्ट फॉर्मेट है, तो इसमें कोई शक की बात ही नहीं है। तो यू मस्ट मेक श्योर दैट इज द ओनली वे टू बी कंफर्टेबल इन योर एग्जाम, अदरवाइज तो बाकी एमसीक्यू एआर तो है ही है, तो उसमें तो अलग से कुछ बताने की बात ही नहीं है। वो तो कोई भी क्वेश्चन हो सकता है, थ्योरी हो सकता है, प्रैक्टिकल हो सकता है, आउटपुट बेस्ड क्वेश्चन भी बन सकता है एमसीक्यू में, कि एक आप प्रोग्राम दे दिया और चार ऑप्शंस आपको दे दिए कि इनमें से कौन सा आउटपुट रहेगा। तो आउटपुट भी हो सकता है, एरर भी हो सकता है, कि एक कोड दे दिया और उसमें बोला गया कि इनमें से कोई एक लाइन में एरर है, तो ये लाइन जो एरर है वो किस टाइप का एरर है, इज इट अ सिंटैक्स एरर, इज इट अ लॉजिकल एरर और रन टाइम एरर, या देर इज नो एरर, ऐसा करके ये भी हो सकता है। तो एआर और जो एमसीक्यू है वो तो बिल्कुल ही जनरलाइज्ड होता है, वो तो हर तरीके के क्वेश्चंस को सर्व सर्व कर देता है, तो इसलिए उसमें ये रखने का कोई मतलब ही नहीं था। And anyways, you have a lot of other worksheets that have MCQ based and AR based questions. I believe so. But I will also share a link that गूगल फोल्डर का लिंक है, उसमें जितने भी हमने आपसे वर्कशीट और स्टडी मटेरियल शेयर किया है, इट इज ऑल देयर। तो उसमें से आप पिक करके आप यू कैन ट्राई क्वेश्चंस, एंड इफ यू हैव सम प्रॉब्लम्स यू कैन जस्ट कीप इट अ लिस्ट, कीप इट एज अ लिस्ट एंड शेयर। कल भी हम क्लास करेंगे इसी टाइम पे, और लगातार संडे तक करेंगे, मंडे भी क्लास होगी क्योंकि ट्यूसडे भी आपका एग्जाम है। तो यू कैन मेक श्योर दैट यू आस्क मी क्वेश्चंस, ठीक है। चलिए, आई होप बाकी सब जाग ही रहे होंगे। श्रद्धा, आयुषी, आर यू ऑल देयर? यस सर। वेरी गुड, ठीक है। चलिए फिर आप लोग कल अगर आ रहे हैं स्कूल में तो कल मिलेंगे, अदरवाइज तो शाम को मिलेंगे फिर, ठीक है। यस सर। ओके ओके, राइट, टेक केयर।